Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss class 10 biology. Chapter 12 Coordination and Control. Okay students, in today's lecture we will discuss the review questions of chapter number 12 Coordination and Control, in which we will discuss the multiple choice questions, then short questions, and at the end we will discuss the understanding the concept, means long questions as well. Okay students, now we will discuss the review questions which are given on your textbook page number 53. So students, firstly we will discuss the multiple choice questions. So the first MCQ is, processes that carry nerve impulses away from the cell body are called. Options are A option axons, B option dendrites, C option synapses, or D option myelin sheath. So the correct answer of this MCQ is A option axons. अब ये जो axons होते हैं ये nerve impulses को away लेके जाते हैं cell body से, while ये जो dendrites होते हैं short projections होते हैं ये नर्व इम्पल्सेस लेके आते हैं सेल बॉडी की तरफ. सो ये जो साइनेप्सेस होते हैं ये साइनेप्सेस बेसिकली गैप्स होते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स. एक न्यूरॉन का दूसरी न्यूरॉन के बिटवीन जो गैप होता है उसको साइनेप्सेस कहते हैं. और माइलिन शेथ बेसिकली श्वान सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स पर जो कि माइलिन शेथ स्क्रीट करते हैं, लिपिड किलेट स्क्रीट करते हैं जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है न्यूरॉन के एक्सॉन्स को. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड MCQ which is the portion of nervous system that is involuntary in action. So options are A option somatic nervous system, B option motor nervous system, C option autonomic nervous system, or D option sensory nervous system. So the correct answer of this MCQ is C option ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. बेसिकली जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि आपके अंडर कंट्रोल होते हैं. मोटर नर्वस सिस्टम मीन्स के जो कंसिस्ट होता है मोटर पाथवे पे जो कि आपके मैसेजेस लेके जाता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली ये इन्वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. और सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सेंसरी पाथवे बनाता है जो कि मैसेजेस लेके जाता है रिसेप्टर से नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो द थर्ड MCQ इज, which neurons are present inside the central nervous system? So the options are A option sensory neurons only, B option motor neurons only, C option sensory and motor neurons both, or D option interneurons only. So the correct answer of this MCQ is D option interneurons only. Basically आपके brain और spinal cord के अंदर just interneuron present होती हैं, while ये जो sensory neurons and motor neurons हैं ये outside the central nervous system present होती हैं. Now we will discuss the fourth MCQ which is the part of the brain responsible for muscle movement, interpretation of the senses and the memory is the. Options are A option pons, B option medulla oblongata, C option cerebrum, or D option cerebellum. So the correct answer of this MCQ is C option cerebrum. बेसिकली ये जो आपके मसल मूवमेंट्स होती हैं और ये जितनी भी सेंसेस होती हैं आपकी उनको इंटरप्रेट करना और ये जो मेमोरी की फॉर्मेशन होती है बेसिकली सेरिब्रम उसको कंट्रोल करता है, सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है. वाइल ये जो पॉन्स होती हैं, पॉन्स बेसिकली आपके जो ब्रीथिंग मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं. और ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है, मेडुला ओब्लांगेटा का बेसिकली जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग को कंट्रोल कर रहा है. सेरिबेलम जो है ये आपके मसल मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहा है कि मसल मूवमेंट्स एक साथ वर्क करें. वाइल ये जो सेरिब्रम है ये इसका फंक्शन है कि वो मसल मूवमेंट, सेंसेस और ये जो मेमोरी है इन सब की फॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल है. Okay students, now we will discuss the remaining multiple choice questions. So fifth MCQ is, apart from hearing, what other major body function is performed by the ear? So the options are
A option hormone secretion, B option body balance, C option reduction in nerve pressure, or D option all of these. So the correct answer of this MCQ is B option body balance. अब आपका जो ईयर है वो हेडिंग के अलावा आपके बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करता है. इट मीन्स कि आपके ईयर के इनर पार्ट में वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती हैं. वाइल ये जो हार्मोन सिक्रीशन है और रिडक्शन इन नर्व प्रेशर है ये आपके ईयर का फंक्शन नहीं होता. नाउ वी विल डिस्कस द 6th MCQ which is the myelin sheath is formed by dash which wrap around the axons of some neurons. So the options are A option nodes of Ranvier, B option axons, C option dendrites, or D option Schwann cells. So the correct answer of this MCQ is D option Schwann cells. अब ये जो Schwann cells होते हैं ये आपके एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि माइलिन शेथ सक्रीट करते हैं, लिपिड की लेयर सक्रीट करते हैं जो कि न्यूरॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है. सो ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर हैं ये बेसिकली नॉन माइलिनेटेड एरियाज होते हैं और एक्सॉन्स जो होते हैं ये लॉन्ग प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि अराइज होती हैं सेल बॉडी से, और डेंड्राइट्स जो होते हैं ये शॉर्ट प्रोजेक्शंस हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस हैं जो कि अराइज होते हैं सेल बॉडी से. सो इसका करेक्ट आंसर श्वान सेल्स हैं जो कि माइलिन शेथ सक्रीट करते हैं एक्सॉन्स के ऊपर. So students, now we will discuss the remaining multiple choice questions. So the 7th MCQ is this is not a part of the hindbrain. It means कि इनमें से कौन सा hindbrain का part नहीं है. Like options are A option pons, B option medulla oblongata, C option cerebrum, or D option cerebellum. So the correct answer of this MCQ is C option cerebrum. Basically जो pons, medulla oblongata और cerebellum हैं ये hindbrain का part है. 3 parts होते हैं hindbrain के, pons, medulla oblongata और cerebellum. While ये जो cerebrum है ये forebrain का part होता है, major portion होता है forebrain का. Okay students, now we will discuss the 8th MCQ which is if you look at an intact human brain, what you see the most is a large, highly convoluted outer surface. This is the options are A option cerebrum, B option cerebellum, C option pons, or D option medulla oblongata. So the correct answer of this MCQ is A option cerebrum. बेसिकली अगर ये जो ह्यूमन ब्रेन है अगर उसको आप ऑब्जर्व करो तो उसमें जो हाईली कॉन्वोल्यूटेड एरिया, हाईली फोल्डेड एरिया जो होता है आउटर सरफेस में वो आप ऑब्जर्व करोगे तो वो सेरिब्रम होता है. वाइल ये जो सेरिबेलम है, पॉन्स हैं और मेडुला ऑब्लांगेटा हैं ये स्मॉलर पार्ट्स होते हैं ब्रेन के. जो मेजर पोर्शन है आपका ब्रेन का वो क्या है, सेरिब्रम है जो कि फोल्डेड एरिया है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, सेरिब्रम. Now we will discuss the remaining multiple choice questions. So 9th MCQ is insulin and glucagon are produced in the options are A option hypothalamus, B option anterior pituitary, C option liver, or D option pancreas. So the correct answer of this MCQ is D option pancreas. Basically जो hypothalamus है ये hypothalamus आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की secretions को कंट्रोल करता है. ये फोर्थ ब्रेन का पार्ट है. ये आपकी प्लेजर और जो आपका एग्रेशन होता है, पेन होता है, सोरो होता है उसको कंट्रोल करता है, इन इमोशंस को कंट्रोल करता है. वाइल इंटीरियर पिट्यूटरी में से हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन रिलीज होता है. लिवर जो है वो बाइल स्क्रीट करता है जो कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं उनको हेल्प करता है कि वो लिपिड के ऊपर अटैक करें और उसको डाइजेस्ट करें और ये डाइजेशन में हेल्प आउट करता है. वाइल जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज जो ग्लैंड है एंडोक्राइन और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड मिक्स होता है. इट मीन्स कि इसका जो मेजर पोर्शन होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और कुछ पोर्शन इसका एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है. सो ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन जो हार्मोन है बेसिकली पैंक्रियाज उनको रिलीज करता है. सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन पैंक्रियाज है. सो स्टूडेंट्स 10th MCQ is all of these are hormones except options are A option insulin, B option thyroxine, C option glucagon, or D option pepsinogen. So the correct answer of this MCQ is D option pepsinogen. Basically
ये सारे हार्मोन्स हैं, इंसुलिन भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी हार्मोन है, ग्लूकागोन भी हार्मोन है। वाइल जो पेप्सिनोजन है ये एंजाइम है जो कि आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। इट मीन्स कि जब पेप्सिनोजन आपका जो HCl है उसके साथ रिएक्ट करता है तो ये एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में क्या करता है, स्टमक के अंदर हेल्प आउट करता है। वाइल ये जो इंसुलिन है ये पेंक्रियाज में से रिलीज होता है और ये आपकी बॉडी में क्या करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। और थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है जो कि फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में। वाइल ग्लूकागोन जो है ये भी पेंक्रियाज से एक्रीट होता है जो कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है आपकी बॉडी में। और इंसुलिन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेप्सिनोजन है, डी ऑप्शन, जो कि एंजाइम है। बाकी तीनों क्या हैं, हार्मोन्स हैं। सो स्टूडेंट्स ये हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर नंबर 12 के कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस दी शॉर्ट क्वेश्चंस विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 54। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स कि आपने टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को आइडेंटिफाई करना है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। सो स्टूडेंट्स जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दे आर दी टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स। लाइक फर्स्ट वन है नर्वस कोऑर्डिनेशन विच इज ब्राउट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होती है। वाइल सेकेंड वन क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन विच इज ब्राउट अबाउट बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। सो ये टू टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन विच इज डिफरेंशिएट बिटवीन the modes of nervous and chemical coordinations। it means कि आपने nervous और chemical coordination में difference check करना है, उनके mechanism में differentiate करना है। so students answer is mode of nervous coordination। basically nervous coordination works through nervous system of organisms। अब nervous coordination का जो mechanism है उसमें आपका जो इन्वॉल्व होता है वो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है और नर्व्स इंक्लूडेड है। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट थ्रू नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है इसमें जो इंफॉर्मेशन मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं। वाइल ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें, मोड चेक करें, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इज हार्मोनल कंट्रोल। ये हार्मोन के थ्रू आपकी बॉडी में जो कंट्रोल होता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। एंड इट वर्क्स थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द ग्लैंड्स इनटू द ब्लड टू फ्लो टू टारगेट रिसेप्टेड सेल्स। अब ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ये आपके किसके थ्रू हो रही है, इट मीन्स कि अगर आपके ग्लैंड्स में से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, ब्लड के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो देन ये ब्लड के फ्लो के थ्रू ये हार्मोन्स आपके टारगेट सेल की तरफ जाएंगे और आपकी बॉडी क्या करेगी, फंक्शन परफॉर्म करेगी। सो ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकेंड क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब बेसिकली जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आपके जो मैसेजेस हैं, इंफॉर्मेशन है वो कन्वे हो रही है। वाइल केमिकल कोऑर्डिनेशन में द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। अब ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसमें जो केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। सो ये डिफरेंस है बिटवीन मोड ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड मोड ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। Now students we will discuss the third short question which is what are the main components of coordinations। अब components of coordination में main components कौन कौन से हैं? So students answer is there are 5 major components of coordination। First one stimulus, second one receptor, third one coordinator, fourth one effector and the fifth one is response। Now students we will discuss the fourth short question from your exercise of chapter number 12 coordination and control। so student fourth short question क्या है, define reflex action and reflex arc। so students reflex action की definition क्या है, basically
Sometimes the involuntary response produced by the CNS is very quick. Such a response is called reflex action. It means कि आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है somehow उसमें से जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं जो कि आपके कॉन्शियस के कंट्रोल में नहीं होती है, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती है, वो बहुत क्विक रिस्पॉन्स होते हैं. इन रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी ही डिस्कस कर चुके हैं, आप इसमें वीडियो लेक्चर से इसकी हेल्प ले सकते हो. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? बेसिकली द पाथवे फॉलोड बाय the nerve impulses for producing reflex action is called reflex arc. अब ये जो pathway होता है nerve impulse का जो कि reflex action produce कर रहा है उसको हम क्या उस pathway को कहते हैं reflex arc कहते हैं. ये हमने already discuss कर लिया हुआ है. आप इसको वीडियो लेक्चर से इसको देख के हेल्प ले सकते हो इन क्वेश्चंस की. Now, students, we will discuss the fifth short question, which is trace the path of a nerve impulse in case of a reflex action. It means कि जो reflex action process है उसमें आपने nerve impulse का pathway देखना है कि नर्व इम्पल्स का क्या पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन में, वो कौन कौन से पार्ट्स में से पास होती है. सो आंसर क्या है इसका? अ नर्व इम्पल्स हैज अ फॉलोइंग पाथवे इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अब वो पाथवे क्या है? सबसे पहले स्टिमुलस रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स. स्टिमुलस रिसीव करते हैं, वो पेन रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, वो आपके टेम्परेचर के हीट के रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं और देन क्या होती है? नर्व इम्पल्स जनरेट होती है. अब ये जो नर्व इम्पल्स है देन कहाँ पे पास होगी? सेंसरी न्यूरॉन्स में जाएगी. अब सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इंपल्स कहां पे जाएगी? इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में. देन इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इंपल्स कहां पे पास होगी? मोटर न्यूरॉन्स में. देन मोटर न्यूरॉन्स से नर्व इंपल्स जाएगी मसल्स में और देन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपकी बॉडी क्या करेगी? फंक्शन परफॉर्म करेगी. सो ये पाथवे है नर्व इंपल्स का इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन. नाउ वी विल डिस्कस द सिक्स्थ short question, which is describe the pupil reflex in dim and bright light. So students, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्यूपल का रिफ्लेक्स जो होता है, प्यूपल क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है इन डिम एंड ब्राइट लाइट. हम दोबारा से डिस्कस करते हैं. इसका आंसर क्या है? बेसिकली रिफ्लेक्स इन डिम लाइट. Pupil dilates in dim light when the radial muscles of iris contract. जब आयरस के जो रेडियल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्रिंक करते हैं, तो प्यूपिल क्या करता है? डायलेट करता है, फैल जाता है. उसका जो इनर होल होता है वो ओपन हो जाता है इन डिम लाइट. वाइल रिफ्लेक्स इन ब्राइट लाइट. अब प्यूपिल का जो रिफ्लेक्स है वो ब्राइट लाइट में क्या है? प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट इन ब्राइट लाइट when the circular muscles of the iris contract. अब जब सर्कुलर मसल्स जो होते हैं आइरस के, जो कलर पार्ट होता है आई का, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा ब्राइट लाइट में. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होती है मीन्स कि जब डिम लाइट होती है तो ये जो रेडियल मसल्स हैं ये आइरस के क्या करेंगे? रेडियल मसल्स, ये जो आउटर वाले मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स करेंगे तो प्यूपिल डायलेट हो जाएगा. मीन्स के प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा और ये आपको डायलेट किया हुआ इस पिक्चर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो. देन जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी इट मीन्स के ब्राइट लाइट में जो सर्कुलर मसल्स हैं, ये जो इनर साइड पे जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो जो प्यूपिल का साइज है इनर वाला वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है और साइज उसका डिक्रीज हो रहा है जब सर्कुलर मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो रेडियल मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं. सो ये है प्यूपिल का रिफ्लेक्स इन डिम एंड ब्राइट लाइट. Now students, we will discuss the seventh short question, which is how would you associate the role of vitamin A with vision and effects of its deficiency on retina. Basically it means कि vitamin A का आपने रोल डिस्कस करना है कि विजन में vitamin A का क्या रोल है और अगर vitamin A की डेफिशिएंसी हो जाए तो देन इसका रेटिना के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. So the answer is rods contain a pigment called rhodopsin. When light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse. So basically ये जो rods होते हैं इनके अंदर pigment present होता है rhodopsin. Basically rods photosensitive cells हैं जो कि retina में present होते हैं और उनके अंदर pigment present है rhodopsin. जब इनके ऊपर light fall होती है तो then ये इनकी breakdown होती है और nerve impulse generate होती है.
सो बॉडी सिंथेसाइजेज रेहिडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए। अब अगर आपकी डाइट में विटामिन ए प्रेजेंट है और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं है विटामिन ए की, तो देन आपकी जो बॉडी है विटामिन ए से क्या किस चीज़ की प्रोडक्शन करती है, रेहिडोप्सिन की प्रोडक्शन करती है, जो कि पिगमेंट है रॉड्स में। एंड दैट इज वाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज लैक ऑफ रेहिडोप्सिन। इन केस के अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो देन आपके जो रेहिडोप्सिन पिगमेंट है रॉड्स के अंदर वो क्या हो जाएंगे, लैक कर जाएंगे, विच इफेक्ट्स द रेटिना, जो कि रेटिना के ऊपर इफेक्ट करेगा, एंड कॉजेज पुअर नाइट विजन। तो देन आपको नाइट टाइम में क्लियर नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब रॉड्स के अंदर वो पिगमेंट ही प्रेजेंट नहीं है जो कि उसको नाइट टाइम में डिम लाइट में हेल्प करता है, कि देखने में हेल्प करता है। अगर वही पिगमेंट एब्सेंट होगा तो आपके जो रॉड्स हैं वो प्रॉपरली वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे, और नाइट टाइम में जब डिम लाइट होगी तो देन आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द नाइट ब्लाइंडनेस, और ये जो प्रॉब्लम है इसको क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। Okay students, now we will discuss the 8 short question, which is define the terms hormone and endocrine system. So the answer is, a hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland directly into the bloodstream, and that produces a specific effect on a particular tissue. अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। इन केमिकल्स को आप हार्मोन्स कहते हो, और ये जो हार्मोन्स हैं इनका स्पेसिफिक इफेक्ट होता है टिश्यूज के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करें तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, डायरेक्टली अपनी स्क्रीशन कहाँ पे स्क्रीट करते हैं, ब्लड के अंदर करते हैं। सो दिस सिस्टम यूजेस केमिकल टू कम्युनिकेट विद इट्स इफेक्टर। अभी जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है यूजुअली ये इसके थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, और ये केमिकल्स को यूज करता है इफेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करने में, ताकि आपकी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन हो सके। सो ये डेफिनेशन है हार्मोन की और एंडोक्राइन सिस्टम की। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स which are given on the page number 54 of your textbook. So students, इसमें जो first question है वो क्या है, explain what can happen if there is no coordination in the activities of organisms. So इसका आंसर क्या है, coordination enables the organism to respond to happening in the world around it. If there is no coordination in the activities of organisms, these cannot be performed perfectly, because the tissues and organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other. They work together, performing their many tasks as the need of the whole body. This means that these activities are coordinated. The body cannot fulfill the single task without coordination. It means कि अगर आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन ना होती तो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में जो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करते, वो एक दूसरे पे मीन्स के डिपेंडेंट होती हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन होती है। तो देन आपकी पूरी बॉडी क्या परफॉर्म करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है। Now students, we will discuss the second question, which is explain the location and function of these parts of brain: cerebrum, cerebellum, pituitary gland, thalamus, hypothalamus, medulla oblongata. So इसका जो आंसर है बेसिकली स्टूडेंट्स वो आपको पेज नंबर 37 till 38 जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है उस पे इसका आंसर है, और देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर पे 48 पे है। सो वहाँ से आप इसका आंसर कंसल्ट करोगे। देन जो थर्ड इसमें क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरल न्यूरॉन। सो इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 पे है। सो आपने इसका आंसर के लिए आपने बुक को कंसल्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हमने इसका फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करना, लाइक डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर गिवन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42 till 43 पे। देन जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल मिडल एंड इनर ईयर ऑफ मैन। सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो गिवन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 till 46 पे। देन जो सिक्स क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर शॉर्ट साइट एंड लॉन्ग साइट प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन दीज बी ट्रीटेड। सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है गिवन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44 पे।
Now students, we will discuss the 7th question, which is explain the role of ear in the maintenance of balance. So students, इसका आंसर है given textbook page number 47 पे. Then 8th question है relate the contribution of Ibn al-Haytham and Ali ibn Isa with knowledge about the structure of eye and treatment of various ophthalmic diseases. So students, इसका जो आंसर है वो textbook page number 44 till 45 पे given है. Now students, we will discuss the 9th question, which is outline the major glands of the endocrine system: pituitary, thyroid, pancreas, adrenal, gonads, with name of their hormones and their function. So students, इसका जो आंसर है वो given है page number 48 till 50 पे. So then 10th question है describe negative feedback with reference to the insulin and glucagon. So students, इसका जो आंसर है वो textbook page number 51 पे given है. Now students, we will discuss the 11th question, which is explain how adrenaline may be involved in exercise and emergency conditions. So students, answer है इसका adrenaline is produced by the adrenal glands in time of fear, anger or anxiety. The rate and intensity of heartbeat increases, blood flow to the limbs increases, blood flow to the alimentary canal and skin is reduced. Such changes prepare the body to face any emergency situation. During exercise, heartbeat, breathing rate increases due to adrenaline to supply energy and oxygen to muscles proper functioning. So students, ये है adrenaline का role in exercise and emergency conditions. So इसका जो 12th question है वो क्या है? Enlist the important symptoms and treatments of paralysis and epilepsy. So students, इसका आंसर है textbook page number 52 पे, और इसकी हेल्प जो आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी ले सकते हो, और साथ साथ आपने अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसको भी कंसल्ट करना है इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए.